कैसे मैं अपनी लेग ड्राइव यूज़ कर रहा हूँ, कैसे मैं आर्क बना रहा हूँ, कैसे मैं अपनी बैक यूज़ कर रहा हूँ, रेयर डेल्ट यूज़ कर रहा हूँ और हाथ कैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रॉपर्ली, सो डैट पूरी जो फोर्स है वो जनरेट हो सके। डंबल प्रेस लगाएंगे तो हम हाथ ऐसे लगते हैं, इसमें हाथ आपको ऐसे रखना है, जो पाम है वो एक दूसरे की तरफ फेस होने चाहिए, पाम फेसिंग ईच अदर। लोअर बैक को आप में आर्क ऐसे नहीं डालनी, तो स्ट्रेट रहनी चाहिए। थोड़ी सी अपनी बॉडी बेंड करना है, थोड़ी सी पैर बेंड करने हैं और डंबल्स को पुल करना आपको। व्हाट इज दिस बाजी? Congratulations! Okay. Got this little mini Arun. Don't you think it looks just like him? Just like him. Just like him. Perfect facial structure, perfect belly, everything's perfect. The glass is really Power solid. lifter's got the muscles. Yep. Right? Yep. I got a nice note here. I crumpled it a little bit, but so proud of him for hitting that There you 1K go. subscriber. Hitting his So- goals. Okay. He's coming any second. All right, all right, all right. In the locker. Okay. How's it looking? How's it looking? That's perfect. Awesome. Okay, he's gonna be so surprised. Okay. Gonna be here in 3 minutes. He just texted me. He's gonna be down any minute. So Okay. just gonna I guess just act natural. Yeah. We're just gonna pretend we don't know How are anything. we gonna hide the camera? We don't want him to think something's up. We're always recording. That's true. Yeah. Okay, should I just pretend I'm doing something? Yeah, we'll look busy. We'll pretend we're doing our own thing. We're doing our own skit. Yeah. We're doing our own skit. Yeah. He's gonna be surprised. Okay. Yep. So when he comes in, we're doing a skit. There you go. That's it. All right. Yeah. So okay, guys. Finally, I'm. Yeah. Oh yeah, I'm just making my own vlog. Yeah. I'm so proud of you because. इस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने काम पे। Finally, I'm. क्रिस भाजी मेरे को रिकॉर्ड कर Oh रहे yeah, हैं। I'm just making my own vlog. Yeah. और जी भाजी, I'm so proud of you because I just want to be like you now, making vlogs. तो भाजी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। So, yeah, vlog. Oh, why you guys are recording me, bro? What happened? No, I'm making a vlog. Everybody's I'm making a vlog. He's making Okay. a vlog. I'm trying to get Chris. You walked into us. Okay, bro. वैसे अभी पहुंचा हूँ, देखते हैं आज का दिन कैसे जाता है। We're all vlogging everyone now. So. जानबूझ के मुझे लगता है मजाक उड़ाने के लिए दोनों ब्लॉग कर रहे हैं मेरे को। So okay, so I will put. Oh, what is this, बाजी? Congratulations! Okay. 1K subscribers. Very proud of you. There you go. How do you Okay. like Mini Aruj? It's same like me, bro. That's it. Thank you, बाजी. Perfect form. 1K subscriber. Thank you, बाजी. Thank you, बाजी. No worries, buddy. Thank you. Thank you. That's why you were recording me. I was wondering why they are recording me. I'm recording you and he's recording me. I was like, how do we make him look like we're not recording him? And I'm like, okay, I'm making my own vlog. Okay, let's go. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I'm good and I hope you all are doing good. So guys, मैं हूँ अरुण सिंह, पर्सनल ट्रेनर इन कनाडा। तो बाकी जो मेरे साथ बने हुए हैं उनको पता कि आज है डे 2 पावर लिफ्टिंग सीरीज़ का। तो आज मैं लगाऊंगा बेंच प्रेस और थोड़ी सी अपर बॉडी। तो जो पावर लिफ्टिंग वर्कआउट होता है उसमें जो थोड़ा वर्कआउट का स्केड्यूल होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। वो नॉर्मल वर्कआउट की तरह नहीं होता कि आज पुश डे है, आज पुल है या आज ऐसे लेग डे, ऐसे नहीं होता। हमारा थोड़ा सा अलग होता है, मिक्स होता है। तो बाकी आप बने रहो मेरे साथ और देखो कि कैसे मैं पावर लिफ्टिंग सीरीज़ में अपनी स्ट्रेंथ धीरे धीरे गेन करता हूँ। और अगर आप भी मेरी इस सीरीज़ को फॉलो करोगे अच्छे से और उसको इम्प्लीमेंट करोगे अपनी वर्कआउट पे या सारा कुछ, तो आपकी भी 101% आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। बट उसके लिए आपको मेरी पावर लिफ्टिंग सीरीज़ रोज़ फॉलो करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कौन सी एक्सरसाइज कैसे लगा रहा हूँ, क्या उसमें लोग गलतियाँ करते हैं ज़्यादातर, क्या नहीं। बट आप इस सीरीज़ में अगर बने रहोगे तो आप लास्ट में मेरे को खुद थैंक यू बोलोगे, क्योंकि एज ए पर्सनल ट्रेनर और एज ए प्रोफेशनल ट्रेनर मैं खुद अगर कर रहा हूँ जो एक्सरसाइज है या खुद जो चीज़ कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली अच्छी करूँगा, सही करूँगा। और अगर आप भी फॉलो करोगे तो आपको भी उसमें 101% रिजल्ट मिलेंगे। बाकी गाइस, अगर आपको कोई भी चीज़ का डाउट होता है इन बिटवीन जो मैं एक्सरसाइज करूँगा या आपको लगता है कि यार मुझे पता नहीं चला कुछ भी, बिना कोई टेंशन के कमेंट करो, कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर आएगा। आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लो, ऐसा कोई कमेंट नहीं होगा जिस भाई ने मेरे से कुछ पूछा हो और मैंने कमेंट ना किया और उसकी हेल्प ना की हो। इन दी टर्म्स ऑफ किसी ने पर्सनल ट्रेनर बनना है, चाहे वर्कआउट के रिलेटेड हो, चाहे वीज़ा रिलेटेड हो, इमिग्रेशन रिलेटेड हो, जो मेरे को पता है मैं अपने हिसाब से बेस्ट करता हूँ। बाकी गाइस, अभी मेरे को 1-2 फ़ोन कॉल्स करनी है, फ़ोन कॉल्स करके चलते हैं सीधा अंदर और करते हैं अपना वर्कआउट स्टार्ट। वर्कआउट करने लगा हूँ स्टार्ट और अभी बेंच प्रेस लगाऊंगा। तो आज डे 2 है, जैसे मैंने आपको बताया। सबसे पहले अपना करूँगा स्टार्ट बेंच प्रेस से। तो मैं आपको बेंच प्रेस से बताता हूँ कि सबसे पहले हम धीरे धीरे वार्म अप करेंगे। तो जो मेरे मेन वर्किंग सेट है वो 90 kg, 3 सेट लगाऊंगा 90 kg के 8-8 रैप के। बट उससे पहले हम करेंगे वार्म अप। तो वार्म अप से भी पहले हम एक चीज़ करेंगे, वो आपको बताता हूँ। बेंच प्रेस जब भी आपको करनी है तो आपके पास अगर मैट है तो इस मैट का ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी जो बेंच पे ग्रिप अच्छी बनी रहेगी और आप अपनी लेग ड्राइव अच्छे से यूज़ कर लोगे और आप बड़ी अच्छे से बेंच कर लोगे। तो गाइस, सबसे पहले हम करेंगे वार्म अप।
तो गाइस पावर लिफ्टिंग बेंच प्रेस है वो नॉर्मल बेंच प्रेस से अलग है। तो इसमें जो पोस्चर होता है, आर्क बनानी होती है, सारा कुछ होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो अगर आप मेरे को बोलोगे कि इसकी एक, मैं सोच रहा हूँ कि इसकी एक अलग से वीडियो बनाऊँ सो आपको पता चल जाए कि नॉर्मल बेंच प्रेस और पावर लिफ्टिंग बेंच प्रेस में क्या डिफरेंस है। क्योंकि जब हम नॉर्मल बेंच प्रेस करते हैं उसमें हम इतना ज़्यादा वेट लिफ्ट नहीं कर सकते। पावर लिफ्टिंग बेंच प्रेस में हम ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हैं। ज़्यादा वेट लिफ्ट करने का रीज़न क्या है कि हम लेग ड्राइव यूज़ करते हैं, हम अपने प्रॉपर बैक मसल यूज़ करते हैं, आर्क बनाते हैं। तो उसके लिए एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल के लिए भी मैं बेंच प्रेस करता हूँ स्टार्ट। चाहे आपको गाइस वेट जितना मर्जी लगाना है, पर आपको खाली रोड से ही शुरू करना अपना वर्कआउट। पहले मैं क्या करता था कि मैं वार्म अप करते करते रिस्ट स्ट्रैप्स नहीं पहनता था। मैं सोचता था कि सीधा मेन सेट पे पहनूंगा, बट जब से रिस्ट में इंजरी हुई है अब से मैं पहली बारी से ही रिस्ट स्ट्रैप पहनना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकता कोई भी। सो रिस्ट स्ट्रैप डालते हैं जिससे कि आपकी जो रिस्ट है उसको सपोर्ट हो जाएगी। अभी देखिए आपको रिस्ट स्ट्रैप जब डालोगे आप, तो जो मेरी रिस्ट है उसको अच्छे से सपोर्ट मिल जाएगी। तो ये देखिए अभी रिस्ट है तो अब इसको अच्छे से सपोर्ट मिली है ये, ठीक है। जैसे मैंने 90 kg लगाना है, जो ऑलमोस्ट 200 पाउंड हो गया 90 kg। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 95 पाउंड से अपना वार्म अप। तो पहला वार्म अप इस हिसाब से आपको रखना है, जब आपका मेन सेट हो उससे इतना डिफरेंस रखना है। तो 90 kg है मेरा वर्किंग सेट, तो पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 95 पाउंड से, मतलब एक हिसाब से 40 kg के आसपास होगा। तो इसके आपको लगाने हैं 8 से 10 रैप। जो आपको वार्म अप करना है उसमें आपको ज़्यादा रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके 5 रैप, इसके लगाऊंगा मैं 2 रैप। वार्म अप है ये। आपको इसमें वेट, फॉर एग्जांपल आपका वेट, बॉडी वेट है 80 kg, तो 60 kg के आसपास इसको रखना, ठीक है। इतना बैलेंस रखना आपको। अब इसके वैसे अगर आप चोक यूज़ कर सकते हैं बेटर ग्रिप के लिए, मैं तो हर बार करता हूँ सो अच्छे से ग्रिप बन जाए। तो अभी इसके गाइस 8 रैप लगाने हैं, और 8 रैप इसके कैसे लगाने हैं, ये नहीं कि चेस्ट के ऊपर ला के ऐसे करना है, ऐसा नहीं करना। नीचे लेके आना है फिर पुश करना है, मतलब 1 सेकंड का भी नहीं बोलूँगा, 0.5 सेकंड का आपको यहाँ पर होल्ड करना फिर पुश। अब देखो मैं कैसे लगाता हूँ। 8 रैप लगाने हैं इसके। ओह माय गॉड गाइस, 3 सेट लगाऊंगा इसके 8 रैप के। तो फिर मिलता हूँ आपको मैं अगली एक्सरसाइज में। बट मेक श्योर करें आप बैच ऐसे लगाओ। बट इसके अलावा भी अगर आपको, मैं सोच रहा हूँ एक बेंच की वीडियो बनाऊँ प्रॉपर, कैसे मैं अपनी लेग ड्राइव यूज़ कर रहा हूँ, कैसे मैं आर्क बना रहा हूँ, कैसे मैं अपनी बैक यूज़ कर रहा हूँ, रेयर डेल्ट यूज़ कर रहा हूँ, और हाथ कैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रॉपरली, सो डैट पूरी जो फोर्स है वो जनरेट हो सके। इस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा मैं। अगर मुझे कमेंट आएगा तो 100% बनाऊँगा, नहीं आएगा तो भी बना देंगे, कोई चक्कर नहीं। एंड अब इसके लगाते हैं 3 सेट। बाकी अपने वेट इस हिसाब से डिसाइड करना है। तो मेरा 1 रैप मैक्स है इसमें बेंच प्रेस में ऑलमोस्ट 130 kg, ठीक है। तो अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ 143-44 kg PR लगाने की इस सीरीज़ के बाद। तो 127 का है मेरी 1 रैप मैक्स, तो ये मैं 90 kg लगा रहा हूँ। गाइस अभी हमने करने हैं पुलअप्स। सो इसके आपको लगाने हैं 3 सेट 8 रैप के। अगर जिससे नहीं लगते वो रेजिस्टेंट बैंड की भी हेल्प ले सकते हैं, उससे भी लगा सकते हैं। बट उससे पहले I'm asking him how many pull-ups you can do in one time. So let's see how many pull-ups he can do in one time. Okay. But you have to go all the way up and all the way down, not half pull-ups. All the way down? Yeah, it's up to you. You want chin-ups or want? Okay, let's go. तो भाई देखते हैं कितने लगाता है जेसन पुल-अप्स। 1 2 3
4 5 all the way down 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ओह नो। ऐसे आपको लगाने तो उसके 3 सेट 8-8 रैप के और आपको हाथ ऐसे रखने प्रोनेटेड ग्रिप। बट जैसन कह रहा है कि मैंने 15 लगाए हैं, तू लगा, तू कितने लगा सकता, तो लेट्स गो। बारह 15 एक ज़्यादा लगाना पड़ेगा जैसन से। अभी हम लगाएंगे इंक्लाइन डंबल प्रेस। तो इंक्लाइन डंबल प्रेस में आपको ज़्यादा इंक्लाइन नहीं करना, नॉर्मल इंक्लाइन करके रखना है जितना मैंने किया हुआ। मतलब जो टेबल होता है जिसको हम सेट करते हैं, जो सबसे फर्स्ट नंबर पे इंक्लाइन आ जाएगा वो वाला इंक्लाइन करना आपको, ज़्यादा इंक्लाइन नहीं करना। बाकी अभी मैं रिस्ट स्ट्रैप पहनता हूँ, सो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता मैं रिस्ट के साथ। और बाकी गाइस एक चीज़ और जो मैं आपको मेन बताना चाहूँगा इसमें, ये है पावर लिफ्टिंग सीरीज़। तो इसमें कुछ चेंजेस होंगे, नॉर्मल वर्कआउट की तरह वर्कआउट नहीं है। इसमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया 3 सेट 8-8 रैप के, इसमें भी आपने वही वेट पिक करना है जिससे आपके 8 रैप लग जाएँ और 9th और 10th भी आप में हो, बट आप लगाओगे नहीं उसको, तो इतना वेट आपको रखना। और इसमें एक चीज़ क्या करना है, ज़्यादातर हम क्या करते हैं जब डंबल प्रेस लगाएंगे तो हम हाथ ऐसे लगते हैं, इसमें हाथ आपको ऐसे रखना है, जो पाम है वो एक दूसरे की तरफ फेस होने चाहिए, पाम फेसिंग ईच अदर। तो इस हिसाब से आपको डंबल प्रेस लगाने हैं। तो लगाते हैं हेडफोन कान में। और आज मैं काफ़ी टाइम बाद लगाने लगा हूँ। ऐसे तो मैंने 120 पाउंड के डंबल लगा रखे हैं, जो कि 55 kg ईच हैंड होता है, बट ज़्यादा दिन बाद लगा रहा हूँ, तो आई वुड से 75 पाउंड से स्टार्ट करता हूँ मैं, उसके 8-8 रैप लगाता हूँ। सेवेंटी फाइव पाउंड काफ़ी इजी आ गया। फिर मैंने सोचा अभी 90 पाउंड के रिमेनिंग 2 सेट लगाऊंगा। 90 पाउंड मेरे हिसाब से हो गया 40 kg के आसपास अराउंड। तो इसके अभी लगाता हूँ 2 सेट 8-8 रैप के। गाइस अभी आपको लगाना है इंक्लाइन डंबल पैक फ्लाई, और इसके 3 सेट लगाने हैं 12-12 रैप के। तो वेट उस हिसाब से आप पिक कर लेना। अब क्रिस भाई आएंगे कुछ ना कुछ करने के लिए। गाइस अभी अगली एक्सरसाइज है बेंट ओवर रो। डंबल के साथ आपको लगाना बेंट ओवर रो, और इसको न्यूट्रल ग्रिप के साथ लगाना है। इसको न्यूट्रल ग्रिप के साथ लगाना आपको। 3 सेट लगाने हैं 8-8 रैप के। मैं आपको मेक श्योर रखना कि अगर आप लगा रहे हो, आपकी जो लोअर बैक है वो एकदम अलाइन रहनी चाहिए। लोअर बैक को आप में आर्क ऐसे नहीं डालनी, तो स्ट्रेट रहनी चाहिए। थोड़ी सी अपनी बॉडी बेंड करना है, थोड़ी सी पैर बेंड करने हैं, और डंबल्स को पुल करना आपको। फेस पुल्स लगाने हैं, और उसको लगाने का तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। 3 सेट लगाने हैं 12-12 रैप के। और जो यूजली हम खड़े होकर फेस पुल्स लगाते हैं, बट अभी हम बैठ के फेस पुल लगाने हैं। और रस्सी को पे पकड़ना है, तो आपकी ये वाली फिंगर है ऐसे पकड़ के रस्सी पे होनी चाहिए, और इसको अपने नोज़ की एकदम स्ट्रेट पुल करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे लगाने हैं। वेट आपने अकॉर्डिंगली डाल लेना। तो ऐसे आपको ये वाला हाथ अपना ऐसे रखना है, तो इसको सीधा अपने नोज़ की एकदम स्ट्रेट
मतलब नोज़ के साथ, जो नोज़ आपका उसके साथ टच करने की कोशिश करनी है, अपने माइंड में ये सोचना। तो उसके 12 रैप लगाने हैं आपको। अभी 3 सेट लगाने हैं मैंने 12 रैप के, बाइसेप्स कर्ल के। तो करते हैं स्टार्ट। तीन सेट लगाने हैं इसके 12 रैप के। 1 2 3 4। All right, now we are in Dolrama and I just had my post-workout meal, paneer and roti. And Paneer and roti. paneer and roti. You know roti, right? Yeah, roti, yeah. Yeah. So now we are looking for needle thread. Needle thread. Needle thread and some more, like 2 or 3 more things to buy. So let's see. I have a client at 7:30, so it's like 7 p.m. So we still have time. We have time. And after that, we are going to the metro. So because I have a cough, so somebody told me roast the guava on the gas and have it, then you will feel better. So let's see. It'll be warm, right? So it'll feel good on your. Maybe. I tried this once in when I was in India, but it works. ये ले लिया। एक मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है इसमें कपड़े डालने के लिए। Now we are looking for chopping board. So we asked one of the staff member here. So she said it should be on the first row. We'll just सिम ये देखिएगा इस जादू। मेट्रो में आए हैं गुआवा देखने के लिए कि अगर इनके पास है या नहीं है। अमरूद ढूंढते हैं अभी। Bro, where is guava, bro? I don't see no guava. Also don't see any guava, bro. Fine. Well, maybe they will see it in the video, but we can't see it right now. Yeah. No guava here. What happened, Jason? They don't have guava? Yeah, no guava. It's sold out. Sold out. So she was one of the staff members. She was saying maybe it's gonna come today. Yeah. And probably you will get tomorrow. So I will come back here tomorrow to get guava. तो यही था पूरे दिन का व्लॉग। और बाकी मेरी पावर लिफ्टिंग सीरीज़ में आप मेरे साथ बने रहो। काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी और काफ़ी आपको ज़्यादा इसका बेनिफिट होगा आपकी स्ट्रेंथ में। 100% आपकी स्ट्रेंथ में बेनिफिट होगा और आप काफ़ी बढ़िया तरीके से आप मसल भी गेन कर पाओगे। बाकी इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा बहुत खाने पीने का और थोड़ी बहुत जो मेन एक्सरसाइजेज हैं, जैसे स्क्वाट हो गया, बेंच हो गया, डेड लिफ्ट होगी, इनकी आपको मैं थोड़ी सी टेक्निक्स बताऊँगा कैसे आप कर सकते हो और कैसे अगर आप करो तो आप ज़्यादा बढ़िया कर सकते हो। क्योंकि पावर लिफ्टिंग में जितना जोर है उतनी टेक्निक्स भी है। टेक्निक्स इन दी सेंस कि हमें कौन सा मसल यूज़ करना उस एक्सरसाइज में। लाइक फॉर एग्जांपल बेंच प्रेस है तो ज़्यादातर लोगों को लगता है बेंच प्रेस सिर्फ चेस्ट की एक्सरसाइज है। तो अगर आप इसको पावर लिफ्टिंग तरीके से करोगे, इसमें चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स, रेयर डेल्ट, बैक, लेग ड्राइव, हर एक चीज़ यूज़ होती है। अगर आप सारी चीज़ें प्रॉपर्ली यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली आप 100% वेट उठाओगे। अगर आप सिर्फ चेस्ट का यूज़ कर रहे हो या शोल्डर का यूज़ कर रहे हो, 2 मसल यूज़ करोगे तो उतनी स्ट्रेंथ आएगी। अगर 5-7 मसल यूज़ कर रहे हो एक ही एक्सरसाइज को और एक ही एक्सरसाइज को पुश करने में, तो ऑब्वियसली ज़्यादा वेट उठाओगे। तो ये सब कुछ ट्रिक्स होती हैं। बने रहो मेरे साथ, आपको मैं बताऊँगा। बाकी आज के व्लॉग में आपने देखा होगा जैसे मैं आज जिम गया, क्रिस भाई ने मेरे को गिफ्ट दिया मेरे 1K सब्सक्राइबर पूरे होने का। मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी गाइस, अगर आपका, मैंने आपको वही बोला था कि आपका जो सराउंड है हमेशा पॉजिटिविटी के साथ होना चाहिए। अगर आपका सराउंड, जो आपके फ्रेंड्स हैं या कुलीग, अगर आपका पॉजिटिव इन्वायरमेंट है तो आपकी जो आप लाइफ में ग्रो कर रहे हो उसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि ज़्यादातर लोग आजकल डीमोटिवेट करने वाले और गलत सलाह देने वाले होते हैं कि या फिर सड़ने वाले होते हैं कि ये कैसे कर रहा है ये वो। बट अगर आपके आसपास अच्छे लोग रहते हैं तो वो एक एग्जांपल था क्रिस भाजी। जब आपके पास अच्छे लोग रहते हैं तो कुछ ऐसा करते हैं वो, नहीं तो मेरे हिसाब से कोई भी नहीं करता यार, है ना। मतलब मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता, मैं इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ इन चीज़ों को लेके। बट मुझे बहुत अच्छा लगा उन्होंने किया और यही होती है एक सच्ची यारी दोस्ती। होप आपको मेरी वीडियो बढ़िया लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, सो डैट आप पावर लिफ्टिंग सीरीज़ को पूरा ख़त्म होने तक देखो और क्या क्या चेंजेस हैं। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तो अपना ध्यान रखिए।